Hello everyone, thank you so much joining the CISSP class. So today we are going to discuss the stride model, okay, and it falls under your threat modeling, okay. So here we are going to discuss two model. One is the stride and one is the pasta, okay. I'll be explain everything. What is stride, what is pasta, how it is related to the real-time environment in the threat modeling, what is the impact and value they both have added, okay. Sure. So let's little bit discuss the history of the stride model, how it is comes and who is we developed this model and how it is, okay. List 2003. So Microsoft launched its trustworthy computing initiative in response to their increasing importance of security in the software industry. Okay. The initiative aims to improve the security and reliability of Microsoft products and services in 2024, 2004. Okay. Michael Howarth and David Levens, both security expert at Microsoft, introduced the stride model. ठीक है, ये दोनों ने stride model इंट्रोड्यूस किए थे in their book written the source code पे. ठीक है. The stride model provides a mnemonic of six categories of threat that software systems might face. So when we say stride, S for spoofing, okay, T stands for tampering, R stand for reputation, I stand for information disclosure, or D stands for denial of services, and E stands for elevations of privilege. ठीक है. This is the six category they have introduced within the stride model. ठीक है. Let's discuss how it is work. The stride model gained transition in the software development and security communities as a practical and effective approach to threat modeling. ठीक है. It provided a common language and framework for discussing security threat and vulnerability, promoting better communications between the security professional and developers. So see, this is not only limit to when we're talking about the cyber threat and threat modeling. When Microsoft develop this threat stride model, they just specific whatever. Let's suppose अगर 2000 में they have built OS. ठीक है, जैसे आपका विंडोज है, विंडोज एक्सपी था, विंडोज एक्सपी 3 था, विंडोज सर्विस 4 आया, then it is comes to your Vista model, then Windows 7 they have introduced. So based on that, whatever they have introduced to the market, they have falls under your stride model. Based on that, it's providing common language and framework to distributing security threats and vulnerabilities, promoting better communications between security professionals and developers. ठीक है. Integrations in Microsoft tools. So how they have integrated, we'll little bit discuss. I'm not taking lot much time to give you the entire history, but ये CISSP के लिए हाँ definitely ये to knowing for CISSP questions ऐसा कुछ नहीं आता है, but हाँ whatever that I have also prepared lots of sample questionnaire and everything, but हाँ to know how the stride model comes to the picture, it will be a little bit beneficial for everyone to know little bit history how it is comes and who will be development, okay. So Microsoft integrated the stride model into various tools and processes, including the Microsoft threat modeling tools to help developers incorporate the threat modeling into their software development life cycles. ठीक है. The stride model continues to be widely used and referenced in the field of cybersecurity and threat modeling. It has been adopted by organizations beyond Microsoft and has influenced the development of other threat modeling methodologies. ठीक है. तो जैसे बहुत सारे मॉडल्स है, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो को फोकस करेंगे. एक रहता है स्ट्राइड DE and the second video will be discussing the pasta. ठीक है. So now we are going to discuss the stride model. So let's discuss what is stride. Okay, I already told you that S stand for spoofing identity. Okay, so जब हम लोग spoofing की बात करते हैं ना, just give you a trick. यहाँ पे हमेशा ना आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी पे ही स्पूफ हो सकता है, अदरवाइज और कहीं पे नहीं होता. लेट मी गिव यू एग्जांपल. ARP, ठीक है, आपका मैक, आपका आईपीस,
किसी का आईडी पासवर्ड्स हो गया, यूजर आईडी। सो किसी का भी दैट रिप्रेजेंट्स टू द आइडेंटिटी फॉर समथिंग। जैसे आपका आईपीस है, लॉजिकल एड्रेस ऑफ सिस्टम्स, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस फॉर सिस्टम्स। तो जिसका भी आइडेंटिटी है, ठीक है, उसी को ही स्पूफ हो सकता है, ठीक है, अटैक। So let's little bit brief how it is, work. An attacker pretend to be, someone they are not gain unauthorized access, not to gain unauthorized access, often using the stolen credential, obtained through phishing or social engineering, ठीक है। मिटिगेशन से इसका क्या होता है? अगर स्पूफ, मैं आपको खाली सिंपल से ही रख रहा हूँ, अगर कहीं पे स्पूफ होता है तो उसका मिटिगेशन ये होता है, तो इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड, ठीक है। आप एमएफए कर दिए, 2FA कर दिए, आपका बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, आप RSA लगा लिए, या बहुत सारे चीज होते हैं, ठीक है, लाइक बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपका एक, होप यू रिमेंबर, डिफेंस इन डेप्थ। तो आपका एक एडिशनल लेयर सिक्योरिटी पैरामीटर पे, लेट सपोज आपका अगर यहाँ पे आईडी पासवर्ड है, यूजर आईडी है, यहाँ पे मैंने MFA लगा के रखा हूँ, ऐसा नहीं होता है, बट जस्ट गिव यू ए क्लैरिटी, आपका एडिशनल लेयर आप लगा रहे हो, ठीक है, टू प्रिवेंट द स्पूफिंग अटैक। टेम्परिंग विद द डेटा क्या होता है? एन अटैकर अल्टर्स, राइट, होप यू रिमेंबर CIA ट्रैट। अल्टर्स अगर हो रहा है तो आपका इंटीग्रिटी ब्रीच हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रिटी ब्रीच हो रहा है, ठीक है। सो एन अटैकर मॉडिफाइज और डिलीट्स डेटा इन ट्रांजिट और डेटा इन रेस्ट। डेटा अगर A से B जा रहा है और डेटा कहीं पे स्टोर है, ठीक है, डेटा इन यूज पे इट इज नॉट हैपनिंग इन दिस सिनारियो, बट डेटा इन ट्रांजिट और डेटा इन रेस्ट पे मैनिपुलेट हो पा रहा है। मैनिपुलेट द intended outcomes, often achieved through interacting इंटरसेप्टिंग एंड चेंजिंग द पैकेट्स, ठीक है। अगर जैसे आपका यहाँ से A से B पे डेटा जा रहा है, ठीक है, ये आपका पैकेट है, फॉर एग्जाम्पल पैकेट जा रहा है, मैं यहाँ पे कुछ MIMT अटैक कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हैकर बैठा है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आया, कुछ चेंज करके मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूँ B को, तो B से जो रेस्पॉन्स आ रहा है, फिर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करके फिर मैं उसको A को भेज रहा हूँ। सो दिस इज द थिंग हाउ इट्स वर्क, वी कैन डिस्कस एंटायर थिंग, ठीक है। उसका बैकएंड टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, वाइल्डस्टार पे हम लोग कैसे पैकेट स्निपिंग एनालिसिस करते हैं, एवरीथिंग वी कैन डिस्कस। हाउ थ्री वे हैंडशेक्स वर्क, आपका पैकेट कैसे जा रहा है, कुकी कैसे जा रहा है, एवरीथिंग वी कैन डिस्कस इन द अपकमिंग स्लाइड्स, जब इसका डोमेन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द स्ट्राइड मॉडल। So changing the packet. So mitigations क्या है? Use a proper encryptions and digital signature to ensure data integrity and authenticity. Authenticity means you are receive the details from a right source. अगर आप बोलोगे नहीं मैं डेटा मेरे से राम से आने वाला है, तो you just make sure कि डेटा जो आपका आ रहा है ना राम से ही आ रहा है, नॉट फ्रॉम एनी अदर एल्स, ठीक है। सो इंटीग्रिटी वही आपका अगर कुछ भी डेटा आप रख रहे हो या वहाँ पे कुछ मैनिपुलेट नहीं हो पा रहा, तो बेस्ट इसमें क्या मैकेनिज्म होता है? इंक्रिप्शन। अगर आप उसको फॉर्मेट को इंक्रिप्ट कर रहे हो, आपका अगर प्लेन टेक्स्ट में डाटा जा रहा है, उसको अगर आप कुछ साइफर टेक्स्ट में डाटा जा रहा है, तो एनी अटैकर अगर मैनिपुलेट भी करता है, तो ही इज नॉट एबल टू गेट द रियल डेटा। एक्चुअली जो रियल वैल्यू है ना, रियल जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हेलो लिख रहे हो, जो रियल वैल्यू या कीवर्ड्स आप डाले हो, उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। ही कैन मैनिपुलेट द इंक्रिप्शन डेटा, बट ही वोंट बी डिक्रिप्ट इट। उसका मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे सा काम करता है, कैसे AES-256 MD5 कैसे इनको, मतलब उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म एज वेल एज ऑफेंसिव डिस्कस करेंगे। अगर MD5 भी है, सो आई एम नॉट श्योर इट विल बी नॉट डिक्रिप्टेड, बिकॉज हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे हाउ द इंक्रिप्शन मैकेनिज्म विल वर्क, ओके। श्योर। रेपुडिएशन, ए यूजर डिनाइज हैविंग परफॉर्म्ड ए पर्टिकुलर एक्शंस, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे IEEE कंसेप्ट, राइट, IEEE, बट यहाँ पे और एक आ जाता है, बट IEEE बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सो यहाँ पे नॉन रेपुटेशन हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, मीन्स रेपुटेशन वगैरह तो क्या होगा, कोई यूजर अगर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फॉर एग्जाम्पल वो नोइंग हो या अनोइंग हो, ठीक है, कुछ भी अगर वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है या कुछ भी मेलिशियस एक्टिविटी करता है और वो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं किया, सो दिस इज हाउ रेपुटेशन वर्क। सो पर्टिकुलर एक्शन सच एज सेंडिंग मैसेज और मेकिंग ए ट्रांजेक्शन, क्रिएटिंग disputes and challenges in proving event occurrence, ठीक है। सो बट वो क्या कर रहा है यहाँ पे, मना कर रहा है, बट उसको कैसे मिटिगेट करेंगे? इम्प्लीमेंटेड ऑडिट ट्रेल्स, अगर आपका ऑडिट लॉग्स होगा, यू नो कि कौन यहाँ पे लॉगिन आइडेंटिफिकेशन लॉगिन किया है, उसका आईडी क्या है, यू नो ऑथेंटिकेशन कैसे, आपका ऑथेंटिकेशन क्या क्या ऑथराइजेशन भी है, राइट्स है,
आपका ऑडिटिंग है, ठीक है, एंड अकाउंटेबिलिटी भी आप देख सकते हो, राइट, कि कौन सा रिसोर्स क्या कर रहा है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर्स, नॉन रेप्यूटेशन मैकेनिज्म टू वेरीफाई एक्शंस, नॉन रेप्यूटेशन बीच में आएगा। नॉन रेप्यूटेशन टू जस्टिफाई करने के लिए आपका यहाँ पे ऑडिट लॉक्स, लॉक्स लॉक्स, ठीक है। Information disclosure. An attacker gains unauthorized access to sensitive information, often exploiting vulnerabilities in software or misconfigured access control. ठीक है। तो जैसे कुछ फॉर एग्जांपल आप एक सर्वर ऐसे ही खोलते हो, फॉर एग्जांपल स्लैश स्लैश 192.168.10.5, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर आपका यहाँ पे मान लो https://abcd.com, यहाँ पे स्लैश करके कोई अगर टेम्प लिख देता है, ठीक है, या कुछ भी करता है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका डेटा कहीं पे लीक हो रहा है, या आपका फॉर एग्जांपल कुछ राउटर्स का आईपीस है, या आपका इंटरनल सर्वर का आईपीस ब्रीच हो रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल कुछ सेंसिटिव डेटा सर्वर वर्जन डिस्क्लोजर हो रहा है, वॉट एवर इट इज नॉट आप उसमें जैसे हम लोग डेटा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, आप उसको मान लो पब्लिक करना नहीं चाह रहे हो, बट फिर भी वो पब्लिकली डिस्क्लोजर हो रहा है, ठीक है। सो उसको कैसे हम लोग मिटिगेट करेंगे, तो अप्लाई स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स, एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, इंक्रिप्ट सेंसिटिव डेटा एंड रेगुलर पैच अपडेट सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। और डेफिनेटली आपका दिस इज लिमिट्स ऑफ द थिंग्स, ठीक है, इतना सिंपल ही नहीं होता है, बहुत सारी चीजें उसमें बैकएंड में काम करते हैं। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द पेज अपडेट, ठीक है, मैं आपको सिनेरियो का लिए बता दिया हूँ, बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द पेज अपडेट, हम लोग को कुछ लेवल पे डाउन टाइम लेना पड़ता है, कुछ भी अगर पेज आता है ना, तो बिफोर यू पुट इन द लाइव एनवायरनमेंट, उसको आपको एक यूएटी एनवायरनमेंट में भी एक बार टेस्ट करना चाहिए, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस। यूएटी एनवायरनमेंट में आप पहले उस पेज को टेस्ट करो अगर ये प्रॉपरली काम कर रहा है, बिकॉज नाउ डेज आई जस्ट गिव यू एग्जांपल कॉल्ड, बहुत सारे ऐसे ऐसे अभी साइबर अटैक हुआ है जहाँ पे बैकडोर वो लोग ओपन कर लिए बिकॉज ऑफ द फ्यू पैचेस, ठीक है, and attacker can enter with using the backdoor and they can manipulate lots of things. We'll discuss what is backdoor and everything, how they can get a proper cell and how they can manipulate it. We can discuss whenever it is come to the upcoming domains, ठीक है। denial of services, ठीक है, attacker floats the systems network or service with an overwhelming volumes traffic, rendering it's unavailable to legitimate users, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई डिनाल ऑफ सर्विसेज होता है, मान लो ये एक सर्वर पे आप एक्सेस कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे यूजर इसको एक्सेस कर रहे हैं। अगर कोई हैकर यहाँ से क्या करता है, फॉर एग्जांपल वो वैसे नहीं काम करता डिनाल ऑफ सर्विसेज या डिस्ट्रीब्यूशन डिनाल ऑफ सर्विसेज, कैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बोर्ड बना दिया या कुछ भी करके यहाँ से वो पैकेट भेज रहे हैं, तो अगर 100 यूजर से आपको पैकेट जा रहा है ना, ये सर्वर आपका वैसे भी डाउन हो जाएगा, या इट इज़ नॉट एबल टू रेस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू द करेक्टिव पर्सन, तो क्या होगा, आपका अवेलेबिलिटी इसमें इश्यूज होगा, और आपका जो लेजिटिमेट यूजर है, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस द पर्टिकुलर सर्विसेज व्हाट द सर्वर इज ऑफरिंग टू देम, ठीक है। सो मिटिगेशन क्या है, employ traffic filtering, rate limiting, and use content delivery network CDNs to observe and mitigate excessive traffic। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होता है, कुछ लेवल पे हम लोग कहाँ बोलते हैं कि अब 5 डाल दो, लोड बैलेंसर डाल दो, या आप बोलते हैं हाँ ठीक है पैकेट फिल्टरिंग करो, जो पैकेट आ रहा है क्या है, रेट लिमिट है, अगर जैसे कुछ लिमिट का पैरामीटर वहाँ पे हो कि ठीक है मान लो फॉर एग्जांपल कुछ एक एप्लीकेशन है उसमें मान लो मोबाइल नंबर क्या है, तो आप बोलोगे मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट्स का होता है, तो आप रेट लिमिट करोगे सिर्फ 10 डिजिट से ही आपका उसमें कोई भी इनपुट दे पाएगा, उससे ज़्यादा ना दे पाए, ठीक है। अगर मल्टीपल टाइम्स अगर कुछ वो इनकरेक्ट करता है तो यू सेट कि हाँ ठीक है यू आईडी पे ये ब्लॉक हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। Evaluations of breaches. So an attacker can exploit vulnerability to gain high level of access than intended, potentially leading to unauthorized controls over security और data, ठीक है। तो मुझे फॉर एग्जांपल एक एडमिन यूजर है, ठीक है, अगर इफ द एडमिन यूजर able to access the administrator right, ठीक है। सो दिस इज द क्रिटिकल इम्पैक्ट लाइक, राइट, तो आप उसको नॉर्मल यूजर किसी को है, एक यूजर को नॉर्मल यूजर है, बट ही कैन मैनिपुलेट समथिंग सर, उसके वजह से वो प्रिविलेज एस्केलेशन ले पा रहा है, या फॉर एग्जांपल आप यू नो लिस्ट इवलेशन ऑफ प्रिविलेज ले पा रहा है, हाई लेवल ले पा रहा है, सो ही कैन ऑफ कोर्स अगर मेरा अगर हाई लेवल पे जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटर में ज़्यादा राइट्स होगा टू मैनिपुलेट ऑन चेंजेस व्हाट एवर ही वांट्स टू डू, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर पे सारा राइट्स रहता है।
मिटिगेशन इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, ठीक है। रेगुलर अपडेट ऑन पेज सॉफ्टवेयर एंड कंडक्ट सिक्योरिटी असेसमेंट टू फिक्स द इंटरनल, जैसे बोलते हैं इंटरनल वीएपीटी आप करवा दो, इंटरनल वीएपीटी करवा दो, ठीक है। आप एक्सटर्नल पीटी करवा दो, जो भी हम लोग कोई वेंडर पे आप हायर करते हो या इंटरनल भी टीम्स रहते हैं टू कंडक्ट द वीएपीटी असेसमेंट, ठीक है। सो जो भी आप इंटरनल असेसमेंट करते हो, उस जो भी आप फाइंडिंग होता है बेस्ड ऑन दैट, इफ़ यू नो द रिस्क दैट विल बी फाइन, अगर वो कितना आपका इम्पेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सटेंड जा रहा हूँ अपने आप को, ठीक है। इट इज़ नॉट रिलेट टू योर स्ट्राइड मॉडल। सो जैसे आपका क्या होता है, एक रिस्क आपको पता है, ठीक है। तो अगर रिस्क का मिटिगेशन ये बोल रहा है कि नहीं, आपको 10 CR इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू मिटिगेट द रिस्क, बट उसमें अगर मेरा जो अमाउंट ऑफ डेटा है या जो मेरा वैल्यू है वो अगर मान लो 2 lakhs का है, तो वाई शुड आई गो टू इन्वेस्ट ऑन नेसेसरी 10 CR। सो बेस्ड ऑन दैट वो भी एक बजटिंग डिस्कशन होता है विद द हायर मैनेजमेंट, कि मेरा डेटा का वैल्यू क्या है एंड हाउ वी कैन, कभी हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं, प्रायोरिटीज ऑफ डेटा कितना इम्पैक्ट है, सीवियरिटी है, क्या कॉस्ट वैल्यू ऐड करता है, किस टाइप का रेपुटेशन रिस्क होता है, कस्टमर सर्विसेज क्या इम्पेक्ट करता है, डू वी हैव एनी बैकअप समवेयर एल्स और नॉट। सो लॉट्स ऑफ चीज़ें आपका बाउंड्रीज पे आता है। सो लेट्स डिस्कस द सिनारियो हाउ द स्ट्राइड मॉडल्स वर्क, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल है, ठीक है। अटैकर क्या क्या, एन अटैकर कैन सेंड ए convincing phishing email to bank customer, tricking them into the revealing their logins and credentials. The attacker then impersonates the users and attempt to transfer funds from victims account to their own, ठीक है। तो थ्रेड मॉडल हम लोग कभी भी स्टार्ट फॉलो करते हैं तो हम लोग पहले जो स्पूफ वगैरह कहीं पे मिल रहा है क्या, टेम्परिंग डेटा कहीं पे मिल रहा है क्या, रेपुटेशन रिस्क कहीं पे है क्या, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर कहीं पे है क्या, लाइक दिस इज द अप्रोच। सो दैट इज द रीजन दे हैव डिफाइंड विद द स्ट्राइड मॉडल, ओके। So tempering, already we discussed what is how it is work. So let's discuss with the same scenario. So attacker intercepts a legitimate fund transfer request, same पे, ठीक है। they modify the recipient amount, let's suppose 1000 का कुछ हो रहा है, वो modify करके उसको कर दिया 10,000, ठीक है। and he can account number and the modified recipient amount number and amount redirect to the funds to an attacker under their controls, ठीक है। तो उसको क्या कर रहा है, वो अपने अकाउंट को ले पा रहा है, ठीक है। रेपुटेशनल रिस्क कैसे हो रहा है, कस्टमर डिनाइज intending a high value transaction, claims it was unauthorized, बोल रहा है कि वो 1000 रुपीज खुद ट्रांसफर करके बोल रहा है मैंने नहीं किया है, दूसरा किसी ने किया है। तो बैंक फेस चैलेंजेस प्रोविजनिंग द ट्रांसफर लेजिटमेंसी, ठीक है। तो एक ट्रस्ट वर्दी भी रहता है कि हाँ बैंक मतलब एक उसका आपका सिक्योरिटी लेवल पे आता है, बट हमेशा रेपुटेशनल रिस्क भी रहता है, ठीक है। सो अगर वो ट्रांसफर खुद करके बना कर रहा है तो बेस्ड ऑन दैट व्हाट वी कैन फोकस ऑन दैट, ये आपका रेपुटेशनल हो गया, ठीक है। REPUDATION रेपुटेशनल। इसको हम लोग नॉन रेपुटेशन से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग फोकस करेंगे यार IEEE वाला कंसेप्ट, ठीक है। आपका ऑडिट लॉक्स, ऑडिट लॉक्स। सो वंस वी फोकसिंग ऑन द गेट द ऑडिट लॉक्स, हम लोग वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि किसने लॉगिन किया था, क्या क्या, टू फॉलो द IEEE कंसेप्ट, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। Information disclosure. A vulnerability in the bank mobile app allows an attacker to bypass the authentications and gain access to sensitive customer data, including account balance and transaction history. मान लो कुछ ऐसा डायरेक्टरी पाथ मुझे मिल गया, we'll discuss how the directory traversal will be work, ठीक है। and we'll discuss everything। यहाँ पर पैरामीटर में डाल रहा हूँ, तो क्या होता है जब आप स्लैश डबल कॉलन स्लैश करके चलते तो आपका एक बैकवर्ड प्लेस आता है, रूट डायरेक्टरी वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है इस ये किसी पाथ में, फॉर एग्जांपल आपका कुछ लिनक्स यूज कर रहा है, तो कोई अगर मान लो स्लैश रूट के अंदर कोई टैम के अंदर कुछ फॉर एग्जांपल डेटा रख के रखा है, ठीक है, या फिर आपका बूट के अंदर कुछ डेटा मिल गया उसको हैकर को, तो ही कैन एबल टू गेट सम मैनिपुलेट जस्ट दिस इज सिंपल एग्जांपल, दिस इज नॉट द थिंग्स हाउ इट इज वर्क इन द रियल टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। सो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह वो मैनिपुलेट कर पा रहा है। डिनाइल ऑफ साइबर क्रिमिनल्स लॉन्च ए मैसिव DDoS अटैक अगेंस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विसेज। डिनाइल ऑफ सर्विसेज है, once they can get the denial of services, they can do the DDoS against the bank online services, overwhelming the servers are rendering the
प्लेटफॉर्म इंक्रीज टू लेजिटमेट यूजर्स। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करते हैं मिटिगेशन, राइट। आपका प्रॉपर फिल्टरिंग हो, रेट लिमिट रहना चाहिए चीज़ों में, आपका जो ट्रैफिक आ रहा है उसको भी क्यू करने के लिए उसको एक लोड बैलेंसर लगना चाहिए, वो F5 हो गया या और भी कुछ बहुत सारे सॉल्यूशंस आजकल आ रहे हैं, ठीक है। एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज, ठीक है, यहाँ पे लीस्ट प्रिविलेज हम लोग करते हैं कि जिसको जो राइट्स चाहिए वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो एंड दैट विल बी रिव्यूड। ए flaw in the application's code allow an attacker with standard user privilege to exploit a vulnerability, gaining administrative access, ठीक है, to the entire online platform। तो उसमें क्या कुछ malicious कोड या कुछ डाल के यूजर यूजर प्रिविलेज था बट ही कैन एबल टू टेक द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, ठीक है। मिटिगेशन स्ट्रेटेजी ऑलरेडी वी डिस्कस। स्पूफिंग आइडेंटिटी पे कैसा होता है, मेक श्योर ये आपको एग्जाम में मेजरली आता है, तो जब भी आप थोड़ा ध्यान रखना, कभी भी स्पूफिंग आइडेंटिटी आता है ना, तो जहाँ पे आइडेंटिटी चीज़ें पे स्पूफ हो पाता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपका अगर कुछ आइडेंटिटी पे जस्टिफाई कर रहा है तो दैट विल बी एबल टू स्पूफ। इम्प्लीमेंट मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड एनहांस द यूजर वेरिफिकेशन, ठीक है। टेम्परिंग डेटा में यूटिलाइज स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन फॉर ट्रांजेक्शन डेटा एंड इम्प्लीमेंट ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। Reputations develop digital signature for transaction and mentoring, comprehensive audit logs, ठीक है, ये आपका मेजरली फोकस होता है। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, रेगुलर ऑडिट एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एम्प्लॉय सोर्स कोड प्रैक्टिसेस एंड सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस एंड कंडक्ट सिक्योरिटी असेसमेंट, ठीक है। कुछ भी आप बीए कर रहे हो, पीटी कर रहे हो, सोर्स कोड रिव्यू कर रहे हो। डिनाल ऑफ सर्विसेज, इंप्लीमेंट डीडोस प्रोटेक्शन सर्विसेज टू डिटेक्ट एंड डीडोस डॉस। अभी लेट्स सपोज अभी वेब भी लगा रहे हो ना, वेब पे भी एक एंटी एडवांस थ्रेट परसिस्टेंस, एंटी एपीटी, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया है टू प्रिवेंट डॉस एंड डीडॉस। अगर क्लाउड पे जा रहे हो तो कुछ ऐसा सब कैसबी भी आ रहा है, अभी कैसबी विल डिस्कस हाउ द कैसबी वर्क। तो ये एक मिडिलवेयर है, ठीक है, तो उसको भी आप बहुत सारे एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन मिल रहा है टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ अटैक्स, ठीक है। एलिवेशंस ऑफ प्रिविलेज, रेगुलर अपडेट एंड पैच सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स टू एलिमिनेट vulnerabilities एंड लिस्ट प्रिविलेज यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, लिस्ट प्रिविलेज। सिनेरियो, और एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं, स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है, हाउ इट इज वर्क। सो स्पूफिंग, एन अटैकर कैन गेन ऑथराइज एक्सेस टू होम ओनर स्मार्ट होम ऐप थ्रू वीक क्रेडेंशियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आईडी डाला है एडमिन एंड पासवर्ड डाला है एडमिन, बहुत सारे आजकल अगर आप टीपी लिंक या कोई भी होम नेटवर्क आईडी या राउटर देखोगे ना, वायरलेस नेटवर्क वगैरह, जिसको हम लोग एपीज भी बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट्स वगैरह भी, तो बाय डिफॉल्ट दे आर नॉट इवन चेंज देयर डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, तो एडमिन एडमिन रख के रखते हैं, या तो रूट एडमिन रख के रखते हैं, तो दे कैन एबल टू मैनिपुलेट एंड get the credentials. They manipulate devices settings such as tunneling lights or and off to create confusions, ठीक है। Tampering with data, the attacker hacks into a smart thermos control systems and alters the temperature setting। एक कुछ कंट्रोल सिस्टम्स है, स्मार्ट थर्मो सिस्टम्स है, उसका टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा करे तो क्या होता है, इट विल बी जो उसमें कुछ भी आप गर्म करना चाह रहे हो कुछ भी, तो द homeowner will be facing a lot of challenges like causing discomfort of the homeowners, right? The reputations, homeowners deny receiving a security alert on their smartphone, स्मार्ट होम ऐप। अभी मान लो कुछ अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलता है कि आप किसी को बोलता है तो पूछते हैं हैव यू रिसीव एनी सिक्योरिटी अल्टरेशंस और हैव यू रिसीव एनी सिक्योरिटी अलर्ट वगैरह, तो बोलता है उस, चाहे वो नोइंग हो और नहीं हो। सो मेजरली यहाँ पे क्या होता है कि नोइंग हो के वो दे कैन सिंपली से डिनाइड, बट अगर वो नोइंग हो या अननोइंग हो डिनाई करता है तो द लॉक्स विल बी कम्स टू द पिक्चर, ठीक है। सो सिक्योरिटी अलर्ट ट्रांजेक्शन स्मार्टफोन हो एफ, क्वेश्चनिंग द सिस्टम्स एक्यूरेसी इन द डिटेक्टिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, vulnerability इन द स्मार्ट डोर बेल कैमरास फैमर्स अलाउड अटैकर टू रिमोटली एक्सेस रिकॉर्ड्स वीडियो ऑफ द होम ओनर्स डेली एक्टिविटी। कुछ भी वो कर रहा है तो वहाँ पे उसका डेटा मिल जा रहा है ना, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर। ऑफ कोर्स अगर किसी का प्राइवेसी लीक हो रहा है या फिर नॉट प्राइवेसी, किसी भी आप समझ पा रहे हो आपका डेली एक्टिविटी के पे मॉनिटर हो रहा है या कुछ भी चीज़ें चेंज हो रहा है, तो आपका एक थ्रेट लेवल पे एक अटैकर को एक माइंडसेट मिल जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपका वो डे टू डे एक्टिविटी ट्रैक करके ही कैन एबल टू प्लान इज नेक्स्ट स्टेप्स, ठीक है।
Denial of services. An attacker floods the home network with malicious traffic. ठीक है, causing connect smart devices such as light and thermostats to become on responsive. Okay, even elevations of privilege. The security falls in the smartphone have softwares allowed the attacker to gain unauthorized access to other devices and the network potentially compromising their control systems. ठीक है, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी ऑलरेडी हम डिस्कस, एनफोर्स स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड, एडमिन एडमिन मत रखो, एनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर द स्मार्ट होम एप्स, ठीक है, टेम्परिंग विद द डेटा, सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन डिवाइस एंड द क्रेडेंशियल हब, इम्प्लीमेंट इंटीग्रिटी चेक्स फॉर डिवाइस कमांड, ठीक है, ओटीआई यूटी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लेवल पे जो आपका यू नो types of gates होता है, it is automatically open, and so what type of machinery and mechanism they have implemented when we talking about the smart nowadays, कि OT बहुत सारे जगह पे काम आ रहे हैं, and operational technology with the AI, so we'll discuss entire things how the things will be work. Reputations, implement event logging and user activity tracking to maintain and audit trails, ठीक है, information disclosure, regular updates device firmware, segment the smart home network and implement device level access control, ठीक है, denial of services, deploy इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम्स, कुछ लेवल पे दे सकते हैं, बट अगर कोई वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे ना कि मेरा अगर गेट अगर 2000 रुपीज़ का अगर मैं उसमें आइडिया आईपीएस लगा के अगर 6 लाख इन्वेस्ट करूंगा मेरा तो मैटर ही नहीं करता, ठीक है, that also is part of cost effective, but security is always be a priority. But when we talking about security anything, so human life is most important in any of the strategy, वो आपका सिक्योरिटी चाहे हो ना हो, ह्यूमन लाइफ इज प्रायोरिटी वन, P1 पे आपका ह्यूमन लाइफ दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई ऑयल एंड गैस प्लेटफॉर्म पे प्लांट पे काम कर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है कुछ भी हो रहा है तो पहले उसका ह्यूमन सेफ्टी पहले होता है, कहीं पे गया कोई भी गैस लीक हो गया तो वो लाइव रिस्क हो सकता है, सो जस्ट मैं आपको रैंडमली सिनारियो दे रहा हूँ, आप खाली इसमें ये फोकस करो कि आपका ह्यूमन लाइफ, ठीक है, वो आपका प्रायोरिटी वन रहता है. Deploy instruction detection systems and mitigate the network attacks. Elevations of privilege. Isolate smart home devices from critical systems. Already हम लोग डिस्कस कर लीस्ट प्रिविलेज है, आप आइसोलेट कर रहे हो, अगर अटैक हो गया तो इफ़ यू आर श्योर दैट इट इज़ ऑलरेडी compromised, ठीक है, इंश्योर रोबस्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर द डिवाइसेस कनेक्शन, ठीक है, बाय कंसिडरिंग दिस डिटेल्स सिनारियो विद स्ट्राइड मॉडल we can better understand how specific threat can affect different systems and applications, and how mitigation strategy can be tolerated to address each threat category and effectively. So today we already discussed that stride model, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, ठीक है, and we already discussed that as per spoofing, tampering, reputations, information disclosure, denial of services, and elevations of privilege, ठीक है, एंड वी ऑल्सो डिस्कस हाउ टू मिटिगेट विद द पर्टिकुलर थ्रेट. तो आप इसको ये सोचो कि आपका एक थ्रेट मॉडलिंग का एक स्ट्रेट मॉडल है. नेक्स्ट वी डिस्कस द पास्ता, बड़ी पास्ता मॉडल. So I just give you the entire scenario and with the upcoming videos, ठीक है, thank you so much everyone, and we'll discuss in the next class.